Welcome to Mental Health Now. So, firstly, happy Holi to all our viewers. Just be safe, play safe, and take care of yourself, most importantly. Secondly, we've been getting a lot of requests on entrance examination, how to prepare for entrance examination, UGC, GRE, MPhil, a lot of papers. So, हमने इस बार सोचा कि why not to do this particular video this time. So the person who's gonna join us for today's particular this video is Divya Utreja. She's basically the team member of Mental Health Now, and we collaboratively work towards this channel. So she has completed her post-graduation from Punjab University, and she's been working as a scientific research editor, basically freelancing at a global company. At the moment, she is currently pursuing her MPhil and consistently been involved in mental health awareness campaigns and published her research papers as well. So she is a very much talented person, and we can definitely consider her strategies and how she tackled this particular examination. So please welcome her, and I hope that this particular experience and her suggestions and recommendations will surely help you in your preparation. So let's just get started. Hi guys, thank you Tulsi for the introduction. So as she mentioned that मैंने December 2019 में UGC NET का एग्जाम दिया था and I cleared it in my first attempt. So as she mentioned, we are here to discuss कि ऐसी कौन सी strategies हैं जिन्होंने मुझे help किया UGC NET का एग्जाम क्रैक करने के लिए, and that too in 1 month. So let's get into the topic. अगर ये कहा जाए कि क्या रीज़न है UGC नेट एग्ज़ाम देने का, तो आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं. फॉर मी, मैंने ये सोच के एग्ज़ाम दिया था कि मुझे अपने प्रॉस्पेक्ट्स इंक्रीज करने हैं फ्यूचर में. इट वाज नॉट एज सच कि मुझे टीचिंग में ही जाना है. तो आपको सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम क्यों देना है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि एग्ज़ाम में बहुत मेहनत जाती है. आपको बहुत अपना समय देना पड़ता है एक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, एंड UGC नेट इज़ नॉट ईजी एज यू नो. सो आफ्टर दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने लिए नोट की वॉज देयर वॉज नो प्रेशर फ्रॉम एनी अदर आउटसाइड सोर्स और इवन फॉर माई सेल्फ की क्लियर करना ही करना है. तो अगर ये प्रेशर या इस हाई लेवल का स्ट्रेस ना हो तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है. जब मैंने एग्ज़ाम दिया है आई हैड अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर इट, और उस समय पे ऐसा प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि मुझे एग्ज़ाम देना ही देना है और मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है. आई गेव इट ऑफ माई ओन फ्री विल बिना स्ट्रेस के. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन आई स्टार्टेड विद पेपर 1 and 2 एट द सेम टाइम. So there are two papers in UGC NET exam, paper 1 and paper 2. So जो paper 1 है उसके अंदर majorly you can say theory भी है और practical concepts भी है. So like there is logic, there is reasoning, there are theoretical portions on higher education, there is data interpretation. So इस type के topics हैं. So for paper 1 usually what I did was कि there is one book. You take up any paper 1 book and you just stick to that book. Okay. So for me I used KVS Madan और उसी एक book से मैंने पढ़ाई की है. What I used to do was कि I would pick up a topic, थ्योरी का टॉपिक लिया जो उसमें चैप्टर्स होते हैं. So एक थ्योरी के चैप्टर को I would pace myself कि ये चैप्टर मैं इतने टाइम में या इतने दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ, considering every other thing. So giving one topic the time according to yourself is very important कि आप एक चैप्टर को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं. So for me I would take one chapter and I would take 2 days to complete it. Okay. Apart from that जो रीजनिंग है, लॉजिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, जितने भी इस टाइप के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, उनमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कॉम्प्रिहेंशन. there are many students who feel कि कॉम्प्रीहेंशन तो बहुत ईजी है, उसको प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है. बट ऐसा है नहीं. लाइक दे आर नॉट दैट ईजी. जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जब आप नेट के पेपर भी चेक करेंगे, यू विल फाइंड दैट द क्वेश्चंस दे कम फ्रॉम वेरी लाइक इन डेप्थ से आते हैं, ऐसे सर्फेस क्वेश्चंस नहीं आते हैं. So I used to practice comprehension, the passages, questions from previous papers from the book KVS Madan.
ऑन अ डेली बेसिस कि दो तीन कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस मुझे दो तीन लाइक एवरी डे आई हैव टू सॉल्व. And then there is data interpretation also. Now I have heard that most students are afraid कि data interpretation उनसे नहीं हो पाएगा या उनको clear नहीं होगा. So यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि try to understand the concept. आप किसी भी सोर्स से बुक्स हैं, अगर बुक्स नहीं समझ आ रही है तो किसी फ्रेंड या सीनियर की हेल्प लेके या फिर यूट्यूब का किसी रिसोर्स का हेल्प लेके उसको सीखने की कोशिश कीजिए. डेटा इंटरप्रिटेशन इज इन फैक्ट वेरी इजी एंड द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन पेपर 1 इज डेटा इंटरप्रिटेशन. रीजनिंग है वो भी प्रैक्टिस की वजह से ही बेहतर होगी. सो पेपर 1 के लिए यू स्टिक टू वन बुक और आप उसको डेली बेसिस पे कुछ कुछ टाइम निकाल के प्रैक्टिस करें. नॉट लाइक द इंटायर डे कि आप एक वीक के अंदर पेपर 1 की तैयारी कर लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं करिए. व्हाट आई डिड वाज पूरे मंथ पे आई स्प्रेड आउट पेपर 1 कि इस टॉपिक को इतने दिन में किया जा सकता है. ओके, कमिंग टू पेपर 2, इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड. साइकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर. तो सबसे पहले तो आई वेंट थ्रू द सिलेबस एंड देन आई सॉ व्हाट टॉपिक्स आई न्यू. कौन से टॉपिक्स के बेसिक्स मुझे क्लियर थे, कौन से टॉपिक के बेसिक्स मुझे क्लियर नहीं थे. बिकॉज जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हम एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड कि जितने भी टॉपिक्स के मुझे बेसिक्स क्लियर थे आई गेव देम एन ओवरव्यू एंड देन आई वेंट अहेड विद द एडवांस्ड पार्ट. फॉर एस्पिरेंट्स हु आर बिगिनिंग विद द प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि कौन से टॉपिक के बेसिक्स आपको क्लियर हैं और कौन से टॉपिक के क्लियर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक लर्निंग. सो लर्निंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, लर्निंग क्या होती है, ऑल द डिफरेंट थ्योरीज. सो अगर आपको ये क्लियर है देन यू मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस. अनटिल एंड अनलेस कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है उसके एमसीक्यूज ना सॉल्व करें क्योंकि उससे आपका मोटिवेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है. So this is what I used to do. I would pick up one unit from the syllabus and then after checking कि मुझे कौन से basics clear है, कौन से part नहीं है, I would use YouTube resources and I would use notes also. तो कोई भी topic उठाया, books ली, read करके notes बनाए and after that I would solve the MCQs also. जो previous net के papers हैं उनको use करके. So what I'm trying to say here is कि I did not just stick to books. आप बुक्स यूज़ कीजिए, आप यूट्यूब यूज़ कीजिए, आप अदर इंटरनेट रिसोर्सेज यूज़ कीजिए ऑथेंटिक चीज़ों से, ऑथेंटिक प्लेसेस से एंड आप नोट मेकिंग में विश्वास कीजिए. इट विल हेल्प यू व्हेन यू हैव टू रिवाइज एट द एंड. सो कमिंग टू रिविजन, जब हम रिविजन की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 वीक आई थिंक देना चाहिए हमें एग्ज़ाम के लिए ओवरव्यू करने के लिए कि किस टॉपिक में क्या आता है. सो दैट इज़ वेर योर नोट्स कम इन जो आपने पहले पेपर 1 and 2 में बनाए कि एक टॉपिक में कौन सी चीज़ें हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रिविजन इज़ कि आपके डाउट्स हाईलाइट हो सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी डाउटफुल हैं या जो क्लियर नहीं है. राइट. सो फ्यू टेक अवेज फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस कि सबसे पहली चीज़ डू नॉट स्टिक टू जस्ट बुक्स. ओके, आप बुक्स पे मत स्टिक कीजिए, आप और रिसोर्सेज यूज़ कीजिए. यूज़ यूट्यूब, यूज़ इंटरनेट, यूज़ हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एज वेल. कि कोई किसी कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा है, किसी को डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से समझना आता है तो आप उनकी हेल्प कीजिए. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट पेस योरसेल्फ अपने अकॉर्डिंग. अगर आपको लगता है कि आप 2 महीने में पूरी तैयारी कर लेंगे क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, सो यू गो विथ 2 months. यू कैन डेफिनेटली डू इट. अगर किसी को लगता है कि उनको थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, सो यू पेस योरसेल्फ दैट. तो अपने आप को किसी और के रिविजन या किसी और की प्रिपरेशन से कंपेयर मत कीजिए कि उसका इतना टाइम लग रहा है, मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है. राइट. सो पेसिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत फ्रीक्वेंटली ये मिस्टेक करते हैं कि अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो दे गिव अप ऑन इट. सो आई वुड सजेस्ट कि इतना ईजिली आप गिव अप मत कीजिए किसी टॉपिक पे. एग्जॉस्ट ऑल योर रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए. राइट. Another important thing that people do, they leave data interpretation क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है या एग्जाम टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. डोंट लीव डेटा इंटरप्रिटेशन एट ऑल बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी. तो अगर आप शुरुआत ही अपने तैयारी की डेटा इंटरप्रिटेशन से करते हैं दैट वुड बी द मोस्ट आइडियल थिंग.
So these were the strategies and ways that I used to clear my exam, and I really hope कि इनमें से किसी एक से भी अगर आपको help हो सकती है, so you take that strategy, you apply it on yourself, and you clear the exam. All the best. Don't forget to like and subscribe our channel. Hit the bell icon to get updates on every time we upload a new video. Stay connected and thank you so much for watching.